Yes. So let us move to aryl halide. अराइल का मतलब क्या था? बेंजीन रिंग. ओके. So this one is benzene ring and X. X is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. ठीक. IUPAC naming is halo benzene. ठीक है ना? तो starting with this is called as chlorobenzene. ठीक है ना? Suppose you are writing with attached halogen is Br. So this is bromo benzene. If other groups are present, suppose so benzene and Cl side chains, that is CH3 group HCl. So numbering must be from 1, that is Cl. Now this become 1 chloro, or simply you are writing chloro. So this is chloro, 1 chloro, 3 methyl and benzene. Suppose you are writing NO2 Br. So this is again 3 nitro or 1 bromo. One will be means B is coming first as compared to N. So this is benzene. This is IUPAC naming. ठीक है ना? म्यूट कर दिया मैंने सबको. Write down fast. Shall I proceed? So this is IUPAC naming. Then isomerism involved.
क्या क्या आइसोमेरिज्म हो सकता था? सपोज यू आर हैविंग this one ClCH3. This is Cl and this is CH3. So this is positional isomerism, but not because of Cl. This is because of CH3. This is because of CH3, because Cl is getting highest priority. So numbering is still from Cl, that is 1, 2, 3, 4. Suppose you are having different groups, but this is Cl and CHO. Again you are writing Cl here and CHO here. So this is 1, 2. Aldehyde is given more preference than Cl. So this is positional isomerism because of Cl. Functional isomerism तो ये शो करेगा नहीं because of halogen. Halogen will remain always halogen. It is not going to change. Halogen से OH नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? Halogen से OH नहीं होगा. चलो, now the next one is methods of preparations. Methods of preparations. Methods of preparations. First, methods of preparations. From benzene. Okay, from benzene. Suppose you are taking benzene ring. अब देखो, मैं यहाँ पर इसके पहले मैं लिख दे रहा हूँ, it is having 3 pi bonds. It is having 3 pi bonds, due to which you can write electron cloud density is high. Electron cloud density is very high. So अब होता था इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज. So benzene ring will always prefer benzene ring will always prefer electrophilic attack. Please write down fast. Electrophilic attack.
will always prefer electrophilic attack. Benzene ring is having 3 pi bonds. 3 pi bonds means there are 6 electrons, due to which electron cloud density is high. That's why benzene ring will always prefers attack of electrophile. विरेजा बोल, समझ में आ रहा है क्या? Shall I proceed forward? Yes, sir. हाँ, तो फ्रॉम बेंजीन के लिए हम लोग बोल रहे हैं दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन रिंग। तो मैंने रिएक्शन कराया Cl2 प्लस और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब दो चीज है, या तो फिर मैं याद करके चलूं और या तो फिर मैं बॉक्स मेथड करके चलूं, या तो फिर मैं मैकेनिज्म समझ लूं। अगर बेस्ट पार्ट इज मैकेनिज्म के लिए, सपोज यू आर टेकिंग AlCl3 plus Cl2. Now AlCl3 is behaving as Lewis acid. Why Lewis acid? Its octet is not complete. Okay, that's why AlCl3 क्या करेगा, AlCl4 माइनस को लिया, क्यों लिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, एंड प्लस चार्ज को जाने दे रहा है। ओके, प्लस चार्ज को जाने दे रहा है, इससे प्रॉफिट क्या होगा, प्लस चार्ज को जाने दे रहा है तो now benzene ring will always prefer attack of this electrophile. इलेक्ट्रोफाइल को E लिखा, न्यूक्लियोफाइल को Nu लिखा, negative charge and positive charge. Since benzene ring is having 6 pi electrons, that is 3 pi bonds, due to which नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होने से, चाहो तो तुम ऐसा प्रीवियस स्लाइड में कर लो, यहाँ पर मैं ऐसा दिखा दूं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये कुछ रॉन्ग मेथड है, बट फिर भी अपने समझने के लिए। सो इट विल ऑलवेज अटैक, यहाँ पे देखो, इट विल बी ऑलवेज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हाउ इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग, यहां से तुम किसी भी एक को बॉन्ड को ब्रेक करो, बिकॉज दिस वन इज सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, एंड दिस इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रोफाइल आया है और वो बॉन्ड बनाना चाहता है, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, हाउ दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड, दिस इज E, दिस इज H, प्लस चार्ज है तो इसलिए इधर माइनस आना चाहिए,
Now this plus and minus will form a bond, and benzene ring का property remains as it is. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक किया, अब E की जगह Cl प्लस रख दो, E की जगह पर Cl प्लस रख दिया बस. Tell me please, anyone is having doubt? Tell me please, anyone is having doubt? Yes or no? सर वो इलेक्ट्रोफाइल बोलो. कैसे किया वो नहीं समझ आया. हाँ बोलो, क्या नहीं आ रहा है? सर वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक किया वो नहीं समझ आया. तेज से बोलो, चैट पे लिखो, आवाज नहीं आ रही है. अरे अब प्रॉब्लम है या नहीं रे भाई? नहीं है तो लिखो जल्दी जल्दी. लास्ट स्टेप बोले एक्सप्लेन करने के लिए. किसी भी कंपाउंड में जब तक चार्ज है कंपाउंड इज अनस्टेबल. किसी भी कंपाउंड में जब तक चार्ज है कंपाउंड इज अनस्टेबल. जब तक कंपाउंड में चार्ज है कंपाउंड इज अनस्टेबल. ओके. किसी भी कंपाउंड में जब तक चार्ज है कंपाउंड इज अनस्टेबल. So this positive charge must be vanished one by making a bond. How it will form a bond? If it is having negative charge adjacent of positive charge, plus and minus will form a bond. That's why this plus charge यहाँ पे आएगा and minus charge यहाँ पे आएगा. ये H plus बाहर निकल गया. जो H plus बाहर निकला Cl माइनस के साथ मिल करके यहाँ पर HCl बना लेगा बस, बाई प्रोडक्ट. टेल मी प्लीज. कौन है? अच्छा व्हाट्सएप, सॉरी. नोट करो, पहले इसको नोट करो सब लोग. इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक कर रहा है? बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? रेड से दिखा रहा हूँ, बेंजीन रिंग फर्स्ट स्टेप देखो 6 डॉट यानी 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? इट विल बी अटैक्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कैसे अटैक करेगा? जब वहां का बॉन्ड ब्रेक होगा. बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? जब ये Cl प्लस इधर से इंटरेक्ट करेगा, है ना? तो दिस वन इज सिमेट्रिकल वन, प्लस माइनस कहीं पर भी जा सकता है. अगर प्लस माइनस अटैक किया तो ई ये ब्रेक हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वन बॉन्ड इज ब्रोकन. ऐसा एरो का हेड माइनस, एरो का टेल प्लस, एरो का हेड माइनस एंड टेल इज प्लस.
सर हाँ बोलो। आपने वो AlCl3 का क्या बताया? AlCl3 is Lewis acid क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। बोलो। अच्छा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है? कौन? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल ये- रिलीज नहीं कर रहा है, खुद इलेक्ट्रोफाइल है। और अच्छा Cl प्लस दो में ब्रेक होता है, Cl प्लस एंड Cl माइनस। तो Cl माइनस को एक कैप्चर कर लिया। अच्छा। Cl माइनस को कैप्चर करेगा क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। हम्म। यस और नो? यस सर। फिर से देखो, ये देखो Cl माइनस को कैप्चर करके बिकम AlCl4 माइनस। नाउ ऑक्टेट इज कंप्लीट। किसका? Al का। तो Al का ऑक्टेट कंप्लीट है। AlCl4 के ऊपर चार्ज इज माइनस। बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा चार्ज है? There are 6 electrons due to which electron cloud density is high. So definitely electron high है तो AlCl4 will not attack. There will be repulsion इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए अटैक कौन करेगा? Cl प्लस। Cl प्लस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यस सर। बोलो अभी भी डाउट है तो? अर्नव, दिस E इज नथिंग बट Cl प्लस के बराबर है। तो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट प्लीज राइट डाउन ए स्टेटमेंट। लिखो when benzene ring is reacting with when benzene ring is reacting with benzene ring is reacting with Cl2 in the presence of AlCl3, then it forms halobenzene. Then it forms halobenzene and hydrogen halide, या क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट लिखो, क्यों दिमाग अपना खराब करेंगे हम लोग। इट इज फॉर्मिंग क्लोरोबेंजीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। उस लाइन को छोड़ दो, नीचे लिखो। इंपॉर्टेंट बना बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखो। लिखो सिंस H plus is replaced by since H plus is replaced by since H plus is replaced by Cl plus, H plus is replaced by Cl plus, H plus is replaced by Cl plus, replaced by Cl plus, replaced by Cl plus, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। That's why this reaction is following. That's why this reaction is following. This reaction is following aromatic electrophilic substitution reaction. Aromatic electrophilic substitution reaction.
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। डेट इज नथिंग बट हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ऐसा ARSE। हमारे टेक्स्ट बुक में रिएक्शन तो दिया है बट स्टेटमेंट नहीं दिया है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, this is important one. Please let me know if anyone is facing problem, yes or no. डबल बॉन्ड ही ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा ना बेटा। जस्ट लाइक एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रोकन, डबल बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है अगर कोई पोलर सॉल्वेंट में रख दूं तो। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकंड बॉन्ड इज पाई, पाई बॉन्ड विल बी इमीडिएटली ब्रोकन इफ एनी पोलर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। ओके, और बोलो, किसी का कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो, टेक्स्ट मी फास्ट if there is problem. अरे किसी को डाउट है क्या? अरे भाई बोलो, अनम्यूट कर दिया मैंने सबको। सृष्टि, सुबोध, सुबोध स्क्वायर, नो सर। श्रुति स्वामी, श्रुति स्वामी डाउट है क्या? बोलो, नहीं डाउट है। सर वो लास्ट स्टेप बताया ना सर। लास्ट स्टेप, हाँ सर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा? वो आपने वो बताया ना, E प्लस इक्वल टू CL प्लस। हाँ हाँ भाई, जहां पर ई लिखा है वो Cl है ना। ये देखो, ये Cl है ना, इलेक्ट्रोफाइल ही तो Cl है। तो जहां ई है वहीं पे Cl रख दो। नहीं समझ में आया? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं तो लिखता हूं तो डायरेक्टली समझ में आएगा। ये देखो, अगर किसी को डाउट है तो मेरे पास जो सारे कोचिंग में होता है बॉक्स मेथड, ये है ना अपना जिंदाबाद, ये ले, हो सकता है ये जल्दी समझ में आए। अब बोलो, मैं सबको फिर से अनम्यूट करता हूं, बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोलो, इधर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है। No, sir. गौतमी स्क्वायर, इधर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। नहीं है। चलो, तो अब मैं आता हूं फिर से ऐसा ही रिएक्शन। सो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन रिंग। फिर से लिया मैंने बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि H इज रिप्लेस्ड बाय Cl। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि Cl प्लस इज रिप्लेसिंग H प्लस। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, तो मेरे टेक्स्ट बुक में ये वाला रिएक्शन दिया है। सेम थिंग, सपोज यू आर टेकिंग Cl एंड Cl, ये ले बॉक्स मेथड। और नहीं तो अगर मैकेनिज्म वाइज जाना है, कौन सा कहां से ब्रेक करके आ रहा है, that I will tell you. This is again forming Cl4 minus FeCl3 belonging to D block element, but still this one is Lewis acid. JEE Mains 2019, important one, नीट में कभी भी आ सकता है।
जबकि मेटल है ना। ओके, again this reaction is following AR, aromatic substitution, but कैसा? इलेक्ट्रोफिलिक, aromatic electrophilic substitution reaction. So when benzene is reacting with Cl2 in the presence of FeCl3, then it forms chlorobenzene and HCl, ठीक है ना? And HCl is nothing but hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Okay. चलो मैं फिर से now I'm summarizing the both reaction and similar reaction. I'm going to take similar reactions AlCl3, then Cl2 and FeCl3, that is Br2 and FeBr3, ठीक है ना? Same case what textbook and other books are writing. Instead of writing FeCl3, they are simply writing Fe. Instead of writing FeBr3, they are writing simply Fe. तो what does it mean? देखो, सबसे पहले अगर तू Fe लेगा ना, तो it will form first FeCl3. And then finally, what does it mean? इसका मतलब वो बना FeCl3 ही रहा है, FeCl3 ही बनाएगा इससे रिएक्शन करके. तो इनडायरेक्ट वे में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. Now tell me, this is Cl, this is Cl. Cl कहीं पर भी हो सकता है, will be definitely chlorobenzene if one Cl is present. Ortho meta para तो तब आता है when any group is present. ऐसा बोलो, is there any doubt? All are following aromatic electrophilic substitution reaction. Aromatic electrophilic substitution reaction. Please let me know. Aniket. Yes, sir. Ananga. Atharv Cube. Atharv Cube. Atharv Cube. Bolo. Is there any problem? Ishwari. FeCl3 is not electrophile, right? Which one? FeCl3. FeCl3 is electrophile. Sir, but FeCl3 is electrophile, that is Lewis acid. Its octet is not complete. sir, then why are we replacing H with Cl plus if FeCl4 is electrophile? FeCl4 is not electrophile, FeCl3 is electrophile. And FeCl3 is not going to attack, this is a heavier molecule.
This is metal. This is not going to react. इसलिए Cl plus will attack. So what is the function of FeCl3 or Fe? It is generating electrophile. It is generating electrophile. Okay? Yes, sir. कौन पूछ रहा था? Sir Arnav. अर्णव. और बोलो कौन है? भक्ति, तनिष्का. तनिष्का शोरूम वाले. Is there any problem? Yes or no? Shall I proceed forward? भाई इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ तो बोलो. इंटरेक्शन जितना कम करेंगे उतना ही बेकार होगा. प्लीज इंटरेक्ट विथ मी. Please interact with me. As much as you are interacting, it will be Yes, better sir. for you. ठीक है, चलो. ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन. लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट लिखो. फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट. From diazonium salt, the most important for board exam. The most important for board exam. तुमको एक इसका डेफिनेशन लिखने को जरूर आएगा. क्लियरली बोल दे रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, कौन बोर्ड में आएगा, कौन सा नीट में आएगा, कौन सा आईआईटी में आएगा. नाउ व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? अब दो चीज है. एक तो मैं तुमको तुम्हारे बुक्स के अकॉर्डिंग जाता हूं. अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा. नोबडी विल राइट एनीथिंग. N2Cl को मैं, दिस इज कॉल्ड एज डायजो. N डबल बॉन्ड N इज कॉल्ड एज डायजो. सॉल्ट क्यों है? दिस इज हैविंग प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज. ठीक है ना. तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, तो मैं ये इसका प्रिपरेशन तुमको लास्ट चैप्टर में मिलेगा, अमाइन चैप्टर में. बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम में कैसे पूछता है, मैं उस टैक्टिस पे जा रहा हूं. सपोज फर्स्ट इट इज रिएक्टिंग विथ HNO3 and H2SO4 और सिंपली HNO3 हीट. कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं. दिस इज NO2. NO2 में से ऑक्सीजन अगर मैं हटा दूं, कैसे? बाय मींस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. तो दिस इज SnCl2 प्लस HCl. SnCl2 एंड HCl. ओके. तो होता क्या है, SnCl2 और HCl अगर तुम लोगे तो SnCl4 और H2 लिबरेट करता है. तो ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन. व्हेन अमाइन इज रिएक्टिंग विथ NNO2 plus HCl, this will form बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन है. ठीक है ना. बट हम लोग यहाँ पर अब डायरेक्टली लिख रहे हैं जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है. तो इंपॉर्टेंट वन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तुझे बुक्स में कैसा लिखेगा, तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ऐसा लिख देगा.
मैंने इसको इलेबोरेट करके लिखा था। ओके, so this is minus charge, this is plus charge. N2Cl, that's why it is saying benzene diazonium salt. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं इस पर, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है मतलब हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ और ये याद थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। कुछ ही चीज़ें हैं पूरी केमिस्ट्री में जहाँ मैं बोलूँगा कि याद करो, वो एक ये भी है। अब देखो, मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा। What is the oxidation state of Cu1? You can write it as CuCl, क्योंकि यहाँ पे तू ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा कॉपर का 2x 2 into -1 equals to 0. That's why x equals to 1. That's why this is called as Cuprous. मैंने बताया था when ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हो तो इक क्यूप्रिक, एंड व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कम हो तो अस क्यूप्रस। तो +2 is cupric, +1 is cuprous. Similar to that, FeCl3 is ferric, FeCl2 is ferrous. Okay, so now इससे रिएक्शन करने के बाद इसको रिएक्शन करके इधर Cl बना लेता है और N2 गैस इधर से बाहर निकलता है, ठीक है ना। या सिंपली N2 लिखो। अब बोलो किसी को यहाँ तक, मैं ये तो नहीं बोलूंगा अभी भी डाउट, क्योंकि उसके आगे मैं फिर से लिखता हूँ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो अब मैंने बोला था कोई कुछ नोट नहीं करेगा, तो अब नोट करना स्टार्ट करो। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट के बाद हेडिंग डालो सैंडमेयर रिएक्शन। पहले हेडिंग डाला फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट एंड नीचे लिखा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो तुम्हारे पास बोर्ड में आता है डिफाइन सैंडमेयर रिएक्शन, 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स का रहेगा। 2 डेफिनेशन आते हैं। ओके, 2 डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस। राइट डाउन डेफिनेशन, लिखो व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, when benzene diazonium salt, when benzene diazonium salt, when benzene diazonium salt is reacting with, when benzene diazonium salt is reacting with HCl in the presence of cuprous chloride, cuprous chloride, then it forms chlorobenzene, then it forms chlorobenzene. Then it forms chlorobenzene, and reaction is called as Sandmeyer reaction. Now note down fast. लेफ्ट साइड का पहले नोट करो, लेफ्ट साइड का नोट करो। मुझे बोर्ड में यही लिखना है डायरेक्टली, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, दिस वन। बट तुम्हारे ही बोर्ड में लिखेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर
हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये स्टेप इतना लिखना पड़ेगा। ये कन्वर्जन में आता है 2 मार्क्स में, जो राइट साइड में लिखा है मैंने। जो मैंने राइट साइड में लिखा है वो 2 मार्क्स के कन्वर्जन में आता है, बोर्ड एग्जाम। मैं सब बताता जाऊंगा, ओके, डोंट वरी। राइट साइड का रिएक्शन में क्या है? राइट साइड के रिएक्शन में 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा रिएक्शन नंबर 1, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ये क्या बनाता था? OH माइनस एंड NO2 प्लस। तो NO2 वाला बेंजीन रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग इज हैविंग 6 electrons, due to which electron cloud density is high. If electron cloud density is high, तो electrophile will attack। तो NO2 गया, NO2 के ऊपर हमने रिडक्शन कर दिया, तो that's why NO2 is converted into O2। ऑक्सीजन का कम होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ओके। ऑक्सीजन का कम होना इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो रिडक्शन कर दिया तुमने। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग के रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे थोड़े से। एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन, क्योंकि डाइजोनियम बन रहा है। तो अभी चाहो तो इसको लिखो या नहीं लिखो, अब तुम लोग देखो। मैंने ये है कि बता दिया है, बेटर हो कि लिख लो, क्योंकि बार बार लिखते रहेंगे तो तुमको याद सा हो जाएगा। दिस इज डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम बन रहा है, दैट्स वाई डाइजोटाइजेशन। ठीक है, अथर्व, अथर्वा बोल। Yes, sir. Thanks. 11th क्लास का रिएक्शन नंबर 1, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना? हाँ सर। शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? Just a moment, sir. हाँ, Sir, 2 minutes. NaNO2 है, NaNO3 नहीं है। हाँ, ये रिएक्शन बेटा थोड़ा सा विरजा याद कर लो डायरेक्टली प्लीज, क्योंकि मैकेनिज्म मैं कराऊंगा तो मैकेनिज्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन, सिंस डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्मिंग। शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? भक्ति, भक्ति शक्ति दो। जल्दी जल्दी नोट करो, फास्ट, नोट डाउन फास्ट। सब लोग क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? इंटरनेट का भी साइक्लोन की वजह से ज्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया। इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत है भाई सभी जगह, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। हाँ, और बेटर हो कि नहीं समझ में आए तो प्लीज गो ऑन वीडियो लेक्चर्स, ओके। तो मैं जितने भी सैंडमेयर रिएक्शंस हैं, अभी जो तुमने डेफिनेशन लिखा सैंडमेयर रिएक्शन का, उसमें सिर्फ हमने क्या लिखा? Cl, जरूरी नहीं है Cl हो।
two reactions. Reaction number 1. This is benzene ring and N2Cl. Now take HCl in the presence of CuCl or Cu2Cl. तो मैं जानबूझ करके ऐसा लिख दे रहा हूं. दूसरी सेकंड रिएक्शन. Second reaction I'm writing CuBr. This is cuprous bromide. ऊपर वाला is also cuprous chloride, but Cu2Cl2 is written. You can write CuCl. Both are correct. Somewhere it will write CuCl. So this one is forming Cl and N2. This one is forming Br and N2. Second reaction is Gattermann reaction. Gattermann reaction. Okay. Obviously है, मैं इसका मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूं. Now you are taking HCl and copper powder. तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दोनों खूब लिखने के लिए आते हैं कि डिफाइन है साहब. तो instead of taking CuCl, you are taking now copper powder. Copper powder लेने पर reaction will be this will be Cl, ठीक, and इधर से फिर से N2 निकलेगा. Second reaction is same, N2Cl. Now you are taking HBr and in the presence of freshly prepared copper powder, then it will form bromo benzene. Okay. ये रिएक्शन मैं कई बार यूज करूंगा, कई बार नहीं. I mean it will be used in last chapter, that is amines, once again. It will be used once again. ठीक है ना. तो गटरमैन कुछ गटरमैन के लिए लिखो रिएक्शन. लिखो when benzene diazonium salt is reacting with HCl or HBr. अब मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं, ऊपर नहीं लिया था. HCl or HBr in the presence of, सर एक बार रिपीट करो. हाँ, when benzene diazonium salt
benzene diazonium salt is reacting with HCl or HBr. HCl or HBr in the presence of copper powder. In the presence of copper powder. In the presence of copper powder. In the presence of copper powder, then it is forming. Then it is forming chlorobenzene or bromobenzene. Chlorobenzene or bromobenzene. Okay. बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो तो ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुमको पहले से बोल रहा हूं भाई कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है कोई ना कोई एक। अब तुम लोग देखो कि तुम लोग को कैसे करना है। ये याद होना ही होना चाहिए। दैट मस्ट बी रिमेम्बर्ड वन मस्ट बी। वो बाई हार्ट मुझे याद करना ही करना है एनी हाउ। एनी हाउ ठीक। तो अगेन आई एम समराइजिंग ऑल द रिएक्शंस। All the reactions of diazonium salt. First reaction is Sandmeyer reaction when HCl is reacting with Cu2 Cl2. HBr in the presence of Cu2Br2 or simply CuBr. Now suppose you are taking HCl in the presence of copper powder. HBr in the presence of copper powder. Okay. And after that this is for iodine. Ki लेकर के हीट किया and then after this is for fluorine. HBF4 से रिएक्शन कराया ठीक है ना या HF और BF3 करके लेगा that is nothing but HBF4 that is nothing but HBF4 ठीक है। So this will be benzene ring and Cl. Second one is Br. Cl. Again this is Br. This is Br. And this one is iodine, iodobenzene. HBr4 को नॉर्मली मैं तुमको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा बट यहाँ पे बोल रहा हूँ इन सबको याद कर लो।
सो दिस इज रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अगर तुम और भी इसमें इंक्लूड करना चाहो तो KCN ले लो। एंड दिस इज नथिंग बट CuX, CuCl या ये सब ले लो। दिस इज नॉट हेलोबेंजीन बट रिएक्शन लिख दिया। तो तुझे अब इसमें से एक रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है। सबने नोट कर लिया? यस, नोट कर लिया, नोट कर लिया। बोलो नंदिनी। यस सर। अथर्व क्यूब। Yes, sir. भक्ति स्क्वायर। गौतमी स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन। So this is nothing but methods of preparations of halobenzene. Methods of preparations of halobenzene. Next heading. Chemical reactions. ठीक है ना? तो केमिकल रिएक्शंस में फिर से अब कोई कुछ नोट ना करेगा। Cl ले लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लिया, X ले लिया। फिर से देखो सभी लोग प्लीज। अभी तुमने बोला बेंजीन रिंग के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है। Why? Because it is having 6 pi electrons in benzene ring. एक बॉन्ड में मैं तुमको दिखा दूं 2 इलेक्ट्रॉन्स। This one. So there are 6 electrons ना। क्लोरीन के पास भी देखो क्या है, क्लोरीन is having also 6 electrons. तो when they will interact, जब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करना चाहेगा बेंजीन रिंग के साथ, तो ये बॉन्ड, अब बोलो पाई बॉन्ड का बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? सभी लोग बोलो एरो का हेड किधर होगा? एरो का हेड किधर होगा? टेल मी फास्ट। एरो का हेड किधर होगा? मतलब एरो का हेड ऊपर या नीचे? These electrons are interactive with pi bond of benzene ring. बोलो। एरो का हेड मस्ट बी साइली। एरो का हेड मस्ट बी इधर। और ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो ये ऐसा भागेगा ना, है ना? तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर भागेंगे। तो व्हाट डज इट मीन? तुम्हारे पास दिस विल फॉर्म, भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, सब लोगों को मैं याद दिला दूं, कम से कम 10 बार ये एग्जाम्पल दे दिया होगा मैंने 10th क्लास में, सॉरी 11th क्लास। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन के पास है ही नहीं, तो बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉन का। वही चीज यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Cl, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Cl, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज पे दिए, प्लस चार्ज उधर चला गया। नाउ यू आर हैविंग दिस वन। फिर से बॉन्ड अगर ब्रेक होना है तो ऐसा ही होना है, क्योंकि माइनस के पास माइनस नहीं रखना है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली उसके बाजू में मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। So this is plus and minus forming a bond. This is negative charge. मैं एक साथ ब्रेक नहीं करता हूं जैसा प्रीवियसली ब्रेक किया था। So this is Cl plus कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। Now this one is negative charge. बॉन्ड को ब्रेक करना है, नेगेटिव चार्ज है तो, है ना। नेगेटिव चार्ज के बाजू में मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। Now plus and minus will form a bond, minus, ये हो गया ठीक। ऐसा हो गया माइनस। फिर से इफ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, देखो प्लस एंड माइनस खत्म, प्लस एंड माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड एंड विल बी ऐसा, या ऐसा नहीं होकर के विल बी, देख लो फर्स्ट स्ट्रक्चर के बिल्कुल पैरेलल है। हो गया। नाउ नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन किसके ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा। प्लीज नोट डाउन फास्ट, मैं बताता हूं क्या है और भी। नोट डाउन फास्ट। भाई ये लास्ट तक आते आते लोग इधर से लीव कर जाते हैं, मेरे ये नहीं समझ आता उनको लेक्चर में समझ में क्या आता है। मम्मी पापा को दिखाने के लिए करते हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं।
नोट कर लिया सबने? That's why this is called as ortho and para directing group. Ortho and para directing group 11th क्लास में किया था, जल्दी जल्दी में किया था। लोन पेयर दे नहीं रहा है, Cl अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड pi bond is broken, double bond is broken. Which double bond? This one. Because of this breaking, positive charge is coming. Next step में देखो, next step में देखो pi bond नहीं है, तो that pi bond is broken. ठीक है ना विरजा? आवाज आ रही है भाई? जीवन बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। आ रही है, जीवन को नहीं आ रही है। अगर नोट कर लिया है तो हम लोग यहाँ पर लेक्चर को फिनिश करते हैं। कल मैं और भी इसको डिटेल में करूंगा। ओके, कल मैं इसको और भी डिटेल में करूंगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नेक्स्ट वीक से हम लोगों का 3 डेज का रखने वाला हूं भाई। नेक्स्ट वीक से 3 डेज का रखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूं। ठीक है, यहाँ तक। थैंक यू। किसी को डाउट है तो रुक सकता है। थैंक यू सर। हाँ, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. किसी को भी डाउट है बोलो। सर पहली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? हाँ बोलो, तेज से बोलो। पहली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या सर? फर्स्ट वन स्टार्ट का क्या प्रीवियस वन? नहीं, स्टार्ट वाला, पहला वाला, स्टार्ट वाला। स्टार्ट फर्स्ट। सर आप मतलब सेकंड स्लाइड दिखा सकते हो क्या? सर फॉर्मेशन फ्रॉम बेंजीन में बोलो। जो मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर निकल जाते हैं? फिर से बोलो। सर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हाँ तो फिर मतलब डबल बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है हाँ, वो कहाँ पे चले जाते हैं?
वो है ना यहाँ पर, ये देखो जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, अच्छा तो ये पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग यहाँ पे आ गया, निगेटिव चार्ज पे आ गया। सर, लेकिन अभी आपने मतलब बोला कि मतलब जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में मतलब रोटेट करता रहता है ना, हाँ, मतलब। बेंजीन रिंग में रोटेट करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो अटैक करेगा ना। सर, तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हाँ, वो जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप को देखो, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक। फर्स्ट स्टेप जहां पे 6H दिखाया है ब्लू कलर, हाँ। उसके बाद जहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब ये रोटेट नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ गए, ठीक। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज बचा, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज तो होगा, बट वो अलग तरीके से होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा फॉर्मेशन, जो मैंने नहीं करवाया यहाँ पर जानबूझ करके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के पहले इधर आ रहा है ऐसा। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ब्लू डॉट से दिखा रहा हूँ, ब्लैक डॉट से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, निगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक नहीं है, ओके। ठीक। हम्म। और बोलो किसी का कोई डाउट, साइली। सर, तो फिर जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे वो माइनस वाला साइन कहाँ पे चला गया? माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल प्लस आके अटैक कर लिया ना, प्लस सर, और माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लिया। अच्छा, मतलब वो मतलब ऐसे ही ब्रेक हो जाता है डबल बॉन्ड, हाँ, ये स्टेबल नहीं ब्रेक रहता? होता है जब ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, और इलेक्ट्रोफाइल माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया, प्लस एंड माइनस विल फॉर्म अ बॉन्ड। सर, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के आने से पहले ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल के आने से पहले ही ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, क्योंकि इंटरेक्शन आकर के इधर करेगा ना इलेक्ट्रोफाइल, जब ये इधर आकर के इंटरेक्ट करेगा तो ब्रेक हो जाएगा, उससे रिएक्शन कराने के लिए, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अदरवाइज जाएगा कहाँ पर। ओके, फर्स्ट समझा। स्टेप देखो, इट इज हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। हम्म। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ गया तब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कैसे करेगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। ठीक। इलेक्ट्रोफाइल इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज Cl प्लस, यस सर। हाँ है ना। यस सर। चलो, और किसी का कोई डाउट है, नंदिनी। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? हाँ, लास्ट स्लाइड बिल्कुल दिखा सकते हैं, दिखाने में क्या है, कोई फ्री में थोड़ा ही है सब कुछ, देखो, बोला फ्री में थोड़ा, फ्री में ही है सब कुछ। और बोलो, साइली, साइली मोर है। हाँ, भक्ति, ऑर्थो मेटा एंड पैरा कैसे डिसाइड करते हैं, जो ग्रुप लगा होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। भक्ति, भक्ति है क्या, भक्ति, भक्ति बोल। जब भी ग्रुप लगा होगा, ग्रुप के बाजू वाला इज ऑर्थो, ग्रुप के बाजू वाला इज ऑर्थो, उसके बाद मेटा, कोई भी ग्रुप लगा होगा, तो Cl के बाजू में ऑर्थो, लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके बाद मेटा मेटा, उसके बाद पैरा। और बोलो किसी का कोई डाउट, बोलो, प्राची, बोल बेटा प्राची।
सायली, डाउट है? प्राची का कोई डाउट नहीं है। विरजा, प्रज्ञा आप्टे, सर आप फोर्थ साइड दिखा सकते हो, कौन सा? फोर्थ वाला स्लाइड। फोर्थ वाला स्लाइड। ये हो गया क्या नंदिनी? हाँ सर हो गए। हाँ, चलो हो गया है तो क्लोज किया जाए। सर 1 मिनट सेकंड स्लाइड दिखाइए ना। पहले फोर्थ वाला कोई तो देख रहा है। अर्णव हो गया क्या? हाँ सर। ये ले। जीवन हो गया सर। हो गया तो शैल आई हाँ क्लोज? सर। सर जब Cl2 मतलब बेंजीन रिंग प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe होता है, हाँ, तो फिर मतलब वो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करता है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि FeCl3 बन रहा है तो Cl प्लस जनरेट नहीं होगा। अरे तो बाद में FeCl3 बनाने के बाद फिर से FeCl4 माइनस बनाएगा ना। सर लेकिन और एक Cl2 नहीं है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। अरे वो ऐसा थोड़ा है कि एक दिखाया तो एक ही है, उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, तो Cl2 एक्सेस में ले रहे हैं। बिल्कुल ओके। ठीक। यस सर। और किसी का कोई डाउट? बोलो, क्लोज करूं? यस सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ।